राधे कृष्ण सभी को। मेरा नाम हर्षिता श्रीवास्तव है, जो कि मेरे पेरेंट्स ने रखा था। एंड उसके बाद मेरे कई अलग अलग नाम हैं, जो कि हर व्यक्ति जैसे एक अलग पहचान होती है, उसी प्रकार मेरी भी कई सारी अलग अलग पहचानें हैं। और मुझे उस बात का बहुत ही गर्व भी है और बहुत ही सम्मानित भी मैं महसूस करती हूँ कि मेरी इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हैं। बिकॉज़ इस एज में, इस बदलते युग में कई सारी चुनौतियों के बीच कई सारी चीज़ों से गुजरते हुए, संघर्ष को देखते हुए अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना इज़ नॉट सो पॉसिबल। बट आई एम ग्लैड कि मैंने कर दिखाया। एंड मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि ब्रह्मांड ने ये शक्तियाँ मुझे दी हैं कि मैं इस बारे में आप सभी को बता सकूं कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। एंड मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इस एज में, लाइक एट द एज ऑफ 29, आई हैव एवरीथिंग। Like whatever I desire, whatever I think, whatever I manifest, I'm having all of those things, and I'm very 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 happy. Because as a woman, as a divine woman, I thought to have a home, to have a healthy atmosphere, to have a healthy environment, to have growth, to have like numerous possibilities for myself, to have such outstanding parents and outstanding society, and like people, those people who genuinely supports me in my growth. And above all, I want a friend, come husband, come enemy, come like my growth partner, my partner in crime, and above than that, a partner with whom I can share the rest of my journey with. And apart from that, all of these things, I want to share my story, my journey from where I've started and where I'm going. It was my dream to have a YouTube channel where I can share so that others can also get motivated, and whenever anybody feels down or unmotivated, they can use my video as motivation to to have a growth in their spiritual journeys, because we all are spiritual beings and we all are on a spiritual journey called life. So to have this life and to grow on this spiritual path, we all need one another, we all need support of each other. So here I am with my support and love. This is me, Harshita Srivastava, the name that is given by my biological parents. Radhika, the name given by my uh, in-laws. And personally, I have named myself as Niharika, which is a name of goddess Durga. I personally gave this name to myself when I was at the age of 18 or 19, I guess, because I literally love this name. My students call me ma'am, which is a favorite word of mine, because that shows my humility, that shows my work. They always call me ma'am. My father, come my best friend, uh, Mr. Gopal Srivastav, and his other name is KK Verma also. His parents used to call him, so it's I call him Gopu. He's my best friend. He calls me Ulu. My bro calls me Ulu. he he called me in with different names. He called me with call sometimes he called me Pagal and whatever the name he wants to use. But above than that, all the people I meet and the real person, those who genuinely care about myself, those who genuinely loves me, wants me to study, wants me to grow, wants me to be happy. And I really want to thank universe, because they have given me such lovely people, and I cannot thank enough, because these people are blessings. My brother is a blessing to me. He is my he is my everything. And in my in my in-laws, they are like
wonderful people. And my husband is a beautiful soul, and my brother-in-law is also a beautiful soul. He supports me unconditionally, and without him I won't be possible to have this beautiful this married journey, because he is a strength to our family. Maybe he lives with us, or maybe he doesn't. Whether he lives or he does not live, he is a great support system to us. Hashtag Arvind Srivastava or Priyanshu Bhaiya. And uh, he is a devotee of Radha Krishna also, because I have seen that the name Radha Krishna imprinted on his hand, which is a very painful process, and he has gone through this process, which is like I cannot even think about that. But he has done such a what we say, such a ही उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया एक बहुत ही छोटी सी एज में, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत इजी है। तो एक डिवोटी होने के नाते उन्होंने ये किया। आज के युग में, इस युग में, जिस युग में बच्चे भटकते हैं, बिगड़ते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते, उन्हें नहीं पता कि लाइट क्या है, उन्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उस युग में उस बच्चे ने अपने आप को संभाला, इतने आगे गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं ये देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने भाई को देखती हूँ, एक छोटी सी एज में उसने इतना कुछ कर दिखाया, इतना आगे बढ़ गया, एंड अपनी सिस्टर की शादी कराना इस खुद से, खुद के पैसों से, खुद के दम पे, इज़ सच अ ग्रेट थिंग, एंड आई कैन नॉट थैंक हिम फॉर दैट। एंड कितना भी थैंक यू बोलूँ, कितना भी ब्रदर्स डे बोलूँ, कितना भी कुछ भी बोलूँ, वो कम होगा, because I cannot think the person that he is, so down to earth, so humble, so loving. But one thing I want to say, that real men do not know how to show their love, and he is such a personality. He is someone who does things without expecting anything in return. He is a great personality. He is a great soul. Apart from that, I want to, like, if I want to share my journey, I was born in UP, Banaras. My parent is from Banaras. My mother is from Kanpur, Uttar Pradesh. Village name is Bindki. From the very childhood, I think I am a different kind of a person and special kind of person. मुझे छोटी छोटी चीज़ों में और छोटे छोटे कामों में और बहुत ही जगह एक ही जगह स्टैगनेंट रहने में मज़ा नहीं आता था। मुझे हर वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का मन करता है, जो कि लोगों को लगता है कि मतलब इस एज में कि काफ़ी क्या कह सकते हैं, बोरिंग है। और पूजा पाठ हो गया, धर्म कर्म हो गया, मदद करना हो गया, हवन करना हो गया, और एक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना हो गया, ये सारी चीज़ें लोगों को लगता था। मुझे भी पहले लगता था कि मे बी एम आई प्रोमोटिंग धर्म, एम आई प्रोमोटिंग कल्चर, एम आई प्रोमोटिंग ट्रस्ट रिलीजन और समथिंग आई शुड फियर। बट धीरे धीरे जब मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ में बढ़ी, तो मुझे लगा नो, इट्स नॉट, it's something that I should not ashamed of, it's something I should proud of. My spirituality, my culture, my tradition, my dharma, my religions, all of these things are a pride to me. uh, One of my student from class 9 from Sunbeam Convent School, her name is Angel Patel, she is from Piparia. She said me कि ma'am, the things or the kind of motivations that you given in the classrooms, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले 45 मिनट्स के एक लेक्चर में हम लोग बच्चों को 15-10 मिनट पहले, वैसे तो 5 मिनट होता है हार्डली, बट कई बार वो उतना इलोंगेट हो जाता था, बिकॉज हमारा बच्चों के साथ एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि हम सबको समझा नहीं सकते। तो उस कनेक्शन में बच्चों को स्पिरिचुअलिटी और कैसे उन्हें अपने मार्ग पे, अपने प्रोग्रेसिव उस जर्नी पे आगे बढ़ना है, तो उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि मैम आप जो वो क्लास में समझाते हो उसको प्लीज़ यूट्यूब में डालो, उसको प्रमोट करो। बट मैंने क्लास के दौरान और उस टाइम पे उस वर्किंग एनवायरनमेंट में उस चीज़ को करना सही नहीं समझा, बिकॉज उस टाइम पे मेरे लिए
मेरा रिज़ल्ट जैसे स्कूल लाइफ होती है तो मेरा एक रिज़ल्ट मैटर करता था एंड एक ऑब्लिगेशन था कि मैं एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर, एज अ ट्यूटर या काउंसलर जो भी काम कर रही थी उस स्कूल में, तो मेरा एक कर्तव्य बनता था कि मैं उस लेक्चर को उस टाइम पे ख़त्म करके उस क्लास को वहीं पे ख़त्म करूँ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ूँ। तो मैंने उस चीज़ को सुना, उसके उस सजेशन को मैंने लिया, बट उस टाइम पे उसको अप्लाई नहीं किया पूरा पूरा, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि 10-20% मैंने अप्लाई नहीं किया, बट पूरा का पूरा मैंने अप्लाई उस टाइम पे नहीं किया। बिकॉज़ ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, इन्हें हमें धीरे धीरे करके समझना चाहिए और इन्हें हमें धीरे धीरे वर्ल्ड के साथ बांटना चाहिए। बिकॉज़ जो ये ट्रांजिशन पीरियड है ना, जिस ट्रांजिशन से हर इंसान गुजर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको ये चीज़ समझनी होगी कि हम सभी स्पिरिचुअल सोल्स हैं। हम सभी अपने अपने नीतियों से, अपने अपने धर्मों से, अपनी अपनी मान्यताओं से, अपने अपने संस्कारों से, अपने अपने संज्ञान से और अपने अपने आत्मज्ञान से बंधे हैं। तो हम सभी एक सोल पर, अगर हम बात करें सोल की, आत्मा के लेवल की बात करें तो हम सभी एक हैं, बट हमारा जो सोचने का, हमारा चीज़ों को महसूस करने का, जानने का, समझने का, पहचानने का, उन पे काम करने का तरीका अलग है। तो मैं हमेशा से लोगों को समझना चाहती हूँ, उनके साथ बैठना चाहती हूँ, उनके साथ वक़्त बिताना अच्छा लगता है मुझे, और एक-एक जर्नी को, एक-एक चीज़ों को नोट करती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, और उसके बाद मुझे आज लगा कि आज 21/4/25 को, विच इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल डे, बिकॉज़ मंडे मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया आफ्टर सैटरडे, बिकॉज़ मुझे शनिदेव, मैं शनिदेव की बहुत बड़ी उपासक रही हूँ। उसके बाद से मैं मंडे, मुझे शंकर जी, तो आई एम फ़ैन ऑफ हिम ऑल्सो, महादेव देवों के देव महादेव। तो उनके बाद से फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में जब से आगे बढ़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सबसे सुना है कि एक एज होती है, थोड़ा धीरे धीरे इन सबको लेना चाहिए, करना चाहिए, बिकॉज अभी एज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हमारे अंदर पहले से आ रही है तो ये चीज़ हम नहीं चूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम अपना पैशन, हम हमारा पर्पस, हम अपने आप को, हमारी बॉडी को कुछ चूज़ नहीं करते, ये हमें एक प्लेटर में मिलता है। बस यूनिवर्स को, साइंस को समझना चाहिए, जो हमको यूनिवर्स देता है, हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, सो दैट हम उन साइंस से जब कनेक्ट कर पाते हैं ना, तभी हमको उस शक्ति का एहसास होता है जो हमारे साथ हर समय, हर पल, हर जगह, हर क्षण में मौजूद है। वो शक्ति है परमात्मा की शक्ति। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उस शक्ति को जो मेरे अंदर मौजूद थी पहले से, हमेशा से। वो शक्ति थी मेरी आत्मशक्ति, मेरी आत्मा की शक्ति, मेरे आत्मा की पुकार, जो मैं अनदेखा कर रही थी लोगों की भीड़ के बीच में। सफलता, असफलता, पैसे, नौकर चाकर, काम, वृद्धि, संन्यास, दिखावापन, लालच, घृणा, नफ़रत, दिखावापन, नफ़रतें, एक दूसरे के प्रति जलन और ना जाने क्या क्या, इन सभी के बीच में मैं अपनी आत्मा की पुकार को दबाए बैठी थी, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बड़ी गलती थी। पिछले 4 से 5 साल मैंने अपने यूं ही मुझे ऐसा लगता है नष्ट कर दिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि नष्ट हैं, वो भी, उनका भी एक पर्पस था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि मैं उस प्रोसेस से गुज़रूँ, तो मैं उस प्रोसेस से गुज़री। लोग मुझे आज हो सकता है पागल समझें, क्योंकि जब इंसान भगवान को गाली दे सकता है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो मैं कोई साधु संत परमात्मा नहीं हूँ, बट मैंने फ़ील किया है, मैं उसी को बोलना चाहूँगी। ये जो कनेक्शन होता है ना हमारा भगवान के साथ, ये मेरा जब मैं कक्षा चौथी में थी, हमारे जमुना कॉलेज से हैं हम, उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत बड़ी भागवत हुई थी। उस भागवत में मैं अपने भाई के साथ गई थी, और उस भागवत में एक टाइम ऐसा आया जब मेरी फैमिली शायद
मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, तो वो शायद बात करने चले गए थे। मेरी सिस्टर शायद आई नहीं थी या घर में ही थी। मेरा भाई मेरे साथ था, वो भी घूम रहा था आसपास एंड मैं वो भागवत सुन रही थी। भागवत सुनते सुनते मैं आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ, 5-10 मिनट के बाद मेरी आंखें लग गई एंड मैं गुरुजी जो भी थे संत महात्मा, आज मैं उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा मुझे, मैं ज़रूर से उनका नाम याद करके अपने इस चैनल के थ्रू आप सभी को बताऊंगी। तो उन गुरुजी की जो ध्वनि है, जो वाणी है, जो उनकी मधुरता थी, जो उनके कथा बाँचने का तरीका था, वो ऐसे मेरे अंतर्मन में उतरा कि मैं उस आत्मा से कनेक्ट हो गई जिससे मुझे वाकई में कनेक्ट होना था। उस शांति से, उस प्रेम से, उस समर्पण से कनेक्ट हो गई। और फिर मैं इतना कनेक्ट हो गई कि मैं उस प्रोसेस में ये भूल गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। वो सुनते 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 मुझे मेरे भाई ने आके टच किया कि दीदी चलो घर। तब मैं उठी हूँ उस चीज़ से एंड फिर मैं घर गई हूँ एंड जो हमारी निजी ज़िंदगी चलती है वो चलती रह गई है। बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। नॉर्मल और नॉर्मल की बात ऐसे नहीं करूँगी, नॉर्मल इन द सेंस आई एम नॉट लाइक दैट अदर की मेरी लाइफ ईजी नहीं रही है। हमेशा कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव ऐसे झटके के रूप में मेरी लाइफ में आए हैं कि मुझे खुद भी क्या बोलते हैं, होता ना कि हम अपनी समझ से समझते हैं, लेकिन कई बार हमारी समझ से ज़्यादा भगवान हमको दे देते हैं और हम उस समझदारी की चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बट एक ढालना होता है ना, अपने अंदर से चैनलाइज करना होता है कि हाँ दिस इज़ ऐसा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, दिस इज़ वर्किंग हाउ इट इज़। बट लाइफ का एग्ज़ाम सुपर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ चल क्या रहा है, बिकॉज़ इट वॉज डिफ़िकल्ट वन। मैं हमेशा कहती थी बचपन से ही, फ्रेंड्स को भी पता है, एक मेरी फ्रेंड है मेघाली सिन्हा, और जब मैं सेंट अलोयसियस कॉलेज में थी तो मैंने उसको एक डायलॉग मारा था। 2015 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2014-15 की बात है। मैंने उसको बोला था पढ़ाई लिखाई सब मुँह माया है। मैंने उसको आई डोंट नो रैंडमली बोल दिया था पढ़ाई लिखाई सब मुँह माया है, ये सब मुँह माया है ना, हम पढ़ते नहीं, हम पास हो जाते हैं, ऐसे ही कह दिया मैंने उसको। एंड उस चीज़ को मुझे अभी भी याद है, अभी भी मैं फॉलो करती हूँ। तो मोह माया है, एक जीवन एक मोह माया में फंसे हैं, मोह माया से ऊपर उठो। तो ये जर्नी मतलब मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारा जो रियल पर्पस है वो खाली पढ़ाई, खाली लिखाई, खाली लोगों के बीच में जाना, उठना, बैठना, शादी ब्याह, बच्चों के बारे में सोचना या घरेलू जीवन, ये सब नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत ही बड़ा है, हमारा विज़न, हमारा कर्तव्य बहुत ही बड़ा है। और वो कर्तव्य मुझे अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, पिछले 2 साल से, कि वो है हमारा जो जर्नी है, उसका मेन तो यही लक्ष्य है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। एंड अगर इन प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस डाल रहा है तो परमात्मा उस हिंड्रेंस को ही आपकी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो मैं ये जिस चीज़ को समझी हूँ, तो आई एम super blessed. I am like blessed. I am having the blessings. From every place I am getting the blessings. My aura is getting like positive daily on a daily basis. Yes. And इस तरीके से जब मैंने अपने पर्सपेक्टिव को ढाला कि yes, everything, every person, every single breath that I am taking is a blessing, is a God's gift, then I am elated and I am purposeful and I am divine, because अब मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी आ रही है उसका जो तोड़ है, मुझे नहीं लगता वो किसी के पास है। आई लाइक डिज़र्व एवरीथिंग, आई डिज़र्व प्रॉस्पेरिटी, आई डिज़र्व एबंडेंस, आई डिज़र्व ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आई मस्ट से, आई डिज़र्व फाइनेंशियल सक्सेस, abundance, love, honesty, truth, and above all, peace.
if a person has its peace of mind, then he has everything. You know, 2 years, 2.5 years back, I literally slipped into, I was feeling that I was slipping into depression because I have taken a huge amount of work which was not even important. If I think कि वो मेरे लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, आज मैं सोचूं, पीछे मुड़ के देखूं, तो मुझे लगता है नो इट्स नॉट। और मैंने ऐसे कुछ कामों में, ऐसे कुछ लोगों में, ऐसे कुछ चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया था कि मैं अपने रियल पर्पस से, अपने रियल विजन से हट गई थी। एंड नाउ अगर मैं एक बार पन्ना पलटूँ अपनी लाइफ का, तो मैं देखती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट था। वो मुझे ये बताने के लिए था कि बेब you are going in a wrong direction and now you have to move in a right direction. In order to move in a right direction you have to go to wrong directions. यानी कि आपको उन गलत रास्तों में भेजा ही इसलिए जाता है ताकि आपको पता हो कि सही रास्ते कौन से हैं। तो ये जब से मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया ना, कि इफ़ यू कैन नॉट चेंज अदर्स, यू कैन नॉट expect others, you cannot ask others, you can rely on others. The day the perspective change, that I cannot change others, I cannot rely on others, I cannot expect anything from others. The only thing that I can do is to take the responsibility of my own thoughts, of my own actions, of my own words, of my own aura, of my own body, of my own work. And the whole narrative got changed in a single minute. And I literally want to thank YouTube. It was like I am a digital bee, you can say, anybody can literally कोई भी कह सकता है कि आई एम अ डिजिटल पर्सन, बिकॉज मैं फ़ोन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अर्लियर इट वॉज बुक्स पहले मेरी बुक्स हुआ करती थी, बट उसके बाद से मेरा फ़ोन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं करोड़ों लोगों से एक साथ कनेक्ट करती हूँ, कहीं जाए बिना। बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट होना, उनकी जर्नी के बारे में जानना, उनके बारे में सुनना, उनके जर्नी को समझना, उन्हें आश्वस्त करना कि नहीं, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अकेले नहीं है, मैं भी इस जर्नी में उनके साथ हूँ। बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम कुछ भी किसी को दे सकते हैं तो सबसे बड़ा दान हमारे वक्त का है। हम किसी के अगर ज़ख्मों को भर नहीं सकते तो हम उस पर मरहम लगाने का काम, या फिर उन ज़ख्मों के बारे में सुनने से अगर किसी का दर्द हल्का होता है तो हम उस कान का काम कर सकते हैं जो कि सामने वाले को चाहिए। क्योंकि हर इंसान, हर आत्मा अपनी एक आध्यात्मिक जर्नी में है। आध्यात्मिक जर्नी, आत्मा का अध्ययन यानी कि आध्यात्मिक जर्नी, उस जर्नी में हर व्यक्ति को बस कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसे सुने, समझे, उसे जज ना करे, उसे कुछ कहे नहीं, बस शांति से उसकी बात सुन ले, ना उसकी बातों को फैलाए, ना उसकी बातों से ऐसा कुछ करे जिससे उसे चोट पहुँचे। तो मैं उन सॉल्यूशन गिवर्स या सॉल्यूशन मेकर्स या एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि सभी के जीवन में अप्लाई होना चाहती हूँ, अगर वो मेरी फैमिली हो, मेरे इन-लॉज हो, माय फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, फैमिली मेम्बर्स से रिलेटिव्स हों। ग्लोबल गुरु बनना चाहती हूँ मैं, विश्व गुरु। बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया में तो मैंने काफ़ी काम किया है फ्रॉम बनारस, माय ओरिजिन टू यूपी, जितना भी मुझे लगता है टाइम मिला काम करने का मैंने किया। टीचिंग के माध्यम से गुरु बनी मैं। बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल थिंग मास्टर ऑफ नन। मुझे बहुत बोला गया था बचपन में कि जैक ऑफ ऑल थिंग मास्टर ऑफ नन। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही में एक मास्टर बन गई हूँ, मास्टरनी बन गई हूँ। और वो मास्टरनी जिसे जीवन का ज्ञान आ गया, जीवन कैसे जीते हैं, लाइफ स्किल्स, ये बच्चों को सिखाना एक, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा, आत्मगौरव की चिंता, और अपने आप को ढूंढते हुए, अपने आप की पहचान बनाते हुए, इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हुए, आत्मसमर्थन करते हुए,
अंतर आत्मा का ध्यान करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जो खुद को जान गया वो विश्व को जान गया। जो खुद को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है आप सभी को बताते हुए कि अब मैं विश्व गुरु की जो एक होती है ना जर्नी, कि हाँ उसमें अपना नाम आप रेखांकित कराते हो, तो मैंने उस जर्नी में अपना नाम रेखांकित करा लिया। हालांकि वो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही करा लिया था, बट मेरे कुछ अदर ऑब्लिगेशंस थे जिनके वजह से मैंने उन चीज़ों पे उतना फोकस नहीं किया। बट मैं बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों पे अब फोकस कर रही हूँ, बिकॉज अर्लियर मेरे साथ देने के लिए कोई मुझे लगता नहीं था, बट अब मुझे लगता है कि हाँ देयर इज़ समबडी जो कि मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। एंड वो मेरी स्पिरिचुअलिटी को शायद समझें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ भी हुई हैं, तो उनकी आध्यात्मिक जर्नी भी रही है और वो भी इस चीज़ को समझेंगे। वो मेरे श्री, उनकी जर्नी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है एंड वो इस चीज़ को जानते हैं। जो मैंने चीज़ें शेयर किया कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे एंड वो मेरे साथ देंगे, वो मेरे साथ देना चाहते हैं। वो हर पल, हर वक्त, हर जगह मेरे साथ है। वो मेरे सुख के नहीं, वो मेरे दुख के पार्टनर हैं। और कहा जाता है ना कि आप सुख में भले ही किसी के साथ ना खड़े हो, बट आपको दुख में ज़रूर दूसरों का साथ देना चाहिए। तो मेरे श्री वैसे ही हैं। अब ये मेरे श्री मैं श्री कृष्ण को भी कहती हूँ और ये मैं अपने पतिदेव के लिए भी श्री शब्द का यूज़ करती हूँ, बिकॉज मैं जितना भी लड़ूँ चिल्लाऊँ, बट दिल से, मन से, आत्मा से मैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। बिकॉज़ हमारा 6 साल 2 महीने का ये जो सफ़र साथ में रहा है, जिसमें हम बदले हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, बट एक काम है जो हमने कभी कम नहीं किया, वो है दूसरों की मदद। आज मुझे उनके ऊपर गर्व महसूस होता है, बिकॉज वो कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे हैं। एंड जिस प्रकार का इंसान मुझे मेरे जीवन में चाहिए था, वो उससे कहीं ज़्यादा है। एंड मैं इसके लिए यूनिवर्स को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी अ बेटर पर्सन एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी वो आपने मुझे दिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि यूनिवर्स आपने मुझे चुना, इस लायक समझा कि मैं अपनी वाणी के द्वारा अपनी इन भावनाओं को आपसे व्यक्त कर सकूँ। एंड इस आध्यात्मिक जर्नी में यूनिवर्सल सपोर्ट, यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव मुझे मिला। मैं उसके लिए मैं क्या बोलूँ, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं ऐसा फील करती हूँ कि जैसे कि अब ऐसा लगता है कि हाँ इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा खाली खुद का फोकस खुद पे है। And I am literally growing on a daily basis, and I really want to share this reel to people so that उन्हें भी ये चीज़ महसूस हो कि लोग कितने ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिसे इस जीवन में आने का मौका मिला। जीवन सिर्फ खाने पीने, सोने, नहाने, नाचने का काम नहीं है। जीवन एक आध्यात्मिक जर्नी है जो हमें सिर्फ इसीलिए मिली है कि हम खुद के जीवन में बदलाव ला सकें, तथा हमारे जीवन से अगर किसी को कुछ बदलाव मिलता है तो वो उस बदलाव को अपने जीवन में लाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। सिर्फ पैसा कमाना, काम करना, सिर्फ क्या बोलते हैं, भ्रमित रहना लाइफ नहीं है जीवन में। बस एक ढर्रे से चली जा रही है ज़िंदगी, ये ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी, आपके शब्द, आपके कर्तव्य, आपका कर्म, आपका काम आपको महान बनाता है। और जो ये महान ज़िंदगी जीता है वही महानता के रास्ते पे चलता है। ये द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। और मैं बहुत ही बड़ी उपासक हूँ हमारे गौतम बुद्ध की। बुद्ध जी जो हैं, जिनकी जो
बातें हैं वो आज के अगर बच्चे अपने जीवन शैली में उतारते हैं तो वो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। वो नाम के साथ साथ अपने काम से उस महानता को हासिल कर सकते हैं जिस महानता के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं अभी अपनी बातों को विराम देने से पहले आज एक आपको ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक सत्य कथा पे आधारित है। ये कहानी जब मैं 10 साल या 12 साल की थी तो एक 6 साल के बच्चे की या 7 साल के बच्चे की कहानी है जिसका नाम था रामचरितमानस। तब मैं अपने पिताजी के स्कूल में, पिताजी माताजी के स्कूल में अध्ययन करती थी। मेरे स्कूल का नाम था JPS मेमोरियल, जमुना प्रसाद शास्त्री के नाम पे वो रखा गया था। जमुना कॉलोनी में वो है। वहाँ पे एक बच्चा था रामचरितमानस। आज के समय जब बच्चे अपने पेरेंट्स से चॉकलेट्स की, आईफोन्स की, टैबलेट्स की, पता नहीं किस किस की ज़िद करते हैं और अपने पेरेंट्स को उस जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि वो अपने बच्चे के लिए ऐसा क्या करें, क्या करना है कि बच्चा खुश हो जाए। उस ज़माने की बात, ये इस ज़माने की बात है, उसको मैं उस ज़माने से रिलेट कर रही हूँ जो कि आज से ज़्यादा नहीं, 16 या 20 साल का बीच का टाइम लैप होगा, लेकिन वो टाइम तो ऐसे फ्लाई होता है कि मुझे कल की बात लग रही है। वो बच्चा 40 रुपीज़ की, जी हाँ, सिर्फ 40 रुपीज़ की बुक के लिए अपने पेरेंट्स से लड़ा था। और वो लड़ाई भी ऐसी थी कि वो लड़ाई नहीं, वो अनशन था 40 रुपीज़ की बुक का। एक बुक के लिए उसने एक हफ्ते खाना नहीं खाया था कि उसको पढ़ाई के लिए बुक चाहिए। तो वो उस दौर की बात है और ये आज का दौर है। इस दौर में भले ही ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन अगर ये वीडियो मेरा पहुंचता है तो मुझे लगता है पेरेंट्स भी, बच्चे भी और कई सारे लोग मोटिवेट होंगे कि हमें पता तो हो कि हमें क्या चाहिए, कि हमें पता तो हो हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़िद करनी है, किस चीज़ की नीड है। हमें नीड और डिज़ायर के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। पैशन, पर्पस, डिज़ायर, नीड, ग्रोथ, अबेंडेंस, लव, वेल्थ, पीस, फ्रीडम, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही महत्व रखते हैं। और अगर सभी व्यक्ति जन इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जर्नी में अविकास को फील करेगा, महसूस करेगा। सभी का विकास होगा, सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, सभी ग्रोथ करेंगे, सभी आगे बढ़ेंगे एंड सभी खुश रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। तो जो मेरा एक लाइफ का मोटो था, जो कि लग रहा है आपको फुलफिल हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास। क्योंकि हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम साइंस के हैं, आध्यात्मिक भी हैं, वैज्ञानिक स्तर भी हमारा बढ़ा हुआ है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर इंटरलिंक्ड। फूड चेन भी हमने पढ़ा है, फूड वेब भी पढ़ा है, इंटरकनेक्टेडनेस भी पढ़ा है, ग्लोबल चीज़ों को भी हम सुनते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए दैट वी ऑल आर कनेक्टेड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। एंड अपन फ़ोन भी चला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही, कहाँ से सिम आ रहा, कहाँ पे नंबर जा रहा, कहाँ पे हमारा IP एड्रेस क्या है, हमें सब पता होना चाहिए। तो वी आर ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। So on this global platform, I'm sharing that we all are connected, we all are together, we all are growing, we all are working, we all are together. We all are souls and we all are on this soulful journey. We all are divine, we all are divine buddies, and is on this divine journey we all are together. We all are consciousness higher, we all have attained a higher level of consciousness. और हमारी ज़िंदगी का यही एक लक्ष्य है कि हम अपनी ज़िंदगी के वो जो हायर लेवल है ना कॉन्शियसनेस का, जो हम आई, मी, यू से उठ के, मैं, मी, माई सेल्फ, ये सब उठ के वी के बारे में बात करना स्टार्ट करें। व्हेन वी टॉक अबाउट वी, हम, हमारा हम से ही युग बदलेगा। हम बदलेंगे, हम युग अगर बदलते हैं तो जग बदलेगा। कहते हैं ना
युवा वायु के समान है और वायु किसी भी दिशा में कहीं भी परिवर्तित हो सकती है। वो बुझा भी सकती है, वो आग लगा भी सकती है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।